ایک شریف نوجوان جسے قدم قدم پر سنگسار کیا گیا۔ ظالم معاشرے کی ناانصافیوں، کرپٹ پولیس اور دولت مند بدماشوں نے اسے بھی ایک غنڈہ بننے پر مجبور کر دیا۔ اور جب ایک شریف انسان جرائم پیشہ بن جائے تو وہ سب غنڈوں سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ ایک بدقسمت نوجوان جسے جرم کی دلدل نے ایک آتش فشاں بنا دیا۔ بدلے کی آگ میں جلتے ایک شریف نوجوان کی کہانی۔ سرحد کے اس پار سے کوئی اطلاع ملی یا نہیں؟ شارق کی بات پر گل رحمان نے کہا، سرحد کے اس پار حالات کچھ بہتر ہو گئے ہیں۔ ملک فرید خان کی طرف سے کل کسی بھی وقت سگنل مل سکتا ہے۔ ہمیں بہرحال تیار رہنا ہے، سگنل ملتے ہی ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ آج کل سرحد پر بھی کچھ نگرانی سخت کر دی گئی ہے۔ مہاجرین کو اس سرحد پر آنے سے روکنا اگرچہ بہت مشکل ہے، لیکن ملیشیا کی پارٹیاں گشت کرتی رہتی ہیں، اس لیے ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی۔ سرحد کی نگرانی بھی دراصل ہم جیسے لوگوں کے لیے کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں جس طرح اسلحہ اور ہیروئن کی ریل پیل ہو گئی ہے، اس سے حکومت پاکستان بھی پریشان ہو رہی ہے۔ پاکستانی حکومت پر عالمی دباؤ بڑھ رہا ہے کہ اسلحے اور خاص طور پر ہیروئن کی سمگلنگ کو روکا جائے۔ تم جانتے ہو کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں بھی پوست کاشت ہوتا ہے، جس سے افیون، چرس، مورفین اور ہیروئن تیار ہوتی ہے۔ حکومت پاکستان نہ صرف پوست کی فصلیں تباہ کر رہی ہے، بلکہ ہیروئن تیار کرنے والی فیکٹریوں کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے۔ ہیروئن کی ایک بڑی مقدار افغانستان ہی سے سمگل ہو کر آتی ہے، اس لیے مشکلات ہونے کے باوجود سرحد کی نگرانی بھی سخت کر دی گئی ہے۔ اس لیے سرحد پار کرتے ہوئے ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی۔ شارق بولا، ابھی میرے دل میں ایک اور خیال آیا ہے۔ تورخان ہم سے باغی ہو گیا ہے، وہ کچھ اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا سکتا ہے۔ وہ ہمارے پروگرام سے واقف ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ سرحد پر ملیشیا کی گشتی پارٹیوں کو ہمارے بارے میں آگاہ کر دے؟ گل رحمان بولا، اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم بھی تو کچی گولیاں نہیں کھیلتے نا۔ وہ ہمارے سرحد پار کرنے والے معمول کے 2-3 راستوں سے واقف ہیں، لیکن ہمارے پاس ایسے راستے بھی ہیں جن کے بارے میں اس کے فرشتے بھی نہیں جانتے۔ ہمارے پروگرام سے واقف ہونے کے باوجود وہ بدبخت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ شارق بولا، مجھے یہی اندیشہ تھا۔ اس کی وضاحت ہو گئی، اب مجھے کوئی پریشانی نہیں رہی۔ وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ مہراب خان کا بیٹا پانی سے بھرا ہوا لوٹا لے کر آ گیا۔ اس نے پہلے سب کے ہاتھ دھلائے، پھر کمرے میں دری پر دسترخوان بچھا دیا۔ اس دوران مہراب خان اپنے مکان میں چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ کھانا لے آیا اور کھانا دسترخوان پر چن دیا گیا۔ کھانے کے دوران گل رحمان اور دیگر لوگ پشتوں میں باتیں کرتے رہے۔ شارق اور نولکھا خاموشی سے کھانا کھاتے رہے۔ ان کی باتوں کا ایک لفظ بھی ان کے پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ شارق نے نولکھے کے چہرے پر بیزاری کے تاثرات بھی صاف طور پر محسوس کر لیے۔ کھانے کے بعد شارق اور نولکھا اٹھ کر مکان سے باہر آ گئے۔ وہ ٹہلنے کے لیے جانا چاہتے تھے، لیکن کتوں کے بھونکنے کی آواز سن کر واپس آ گئے اور مکان کے اس کمرے میں گھس گئے جو صرف ان دونوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ ایک پتھر پر مٹی کے تیل کا دیا جل رہا تھا۔ دھواں کمرے کی فضا میں پھیلا ہوا تھا۔ اس دھوئیں کی وجہ سے ان کے حلق تک سیاہ ہو چکے تھے۔ وہ تھوکتے بھی تو ان کے حلق سے کالک ہی نکلتی۔ نولکھا اپنے بستر پر بیٹھتے ہوئے بولا، شارق باؤ، ہم لوگ کہاں آ کر پھنس گئے ہیں؟ عجیب لوگ ہیں یہ، یہاں سے تو واپسی کا راستہ بھی نہیں ہے۔ شارق نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، واپسی کا راستہ تو واقعی نہیں ہے، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ اگر کل رات تک ملک فرید خان کی طرف سے آگے بڑھنے کا سگنل نہ ملا تو میں گل رحمان سے بات کروں گا کہ ہماری واپسی کا بندوبست کر دیا جائے۔ نولکھے نے سر ہلاتے ہوئے کہا، بات کرنی ہی پڑے گی، یہاں پڑے پڑے تو ہمیں زنگ لگ جائے گا۔ مجھے تو لاہور یاد آ رہا ہے شارق باؤ۔ لکشمی چوک اور بھاٹی گیٹ کی رونق میری نظروں کے سامنے گھوم رہی ہے۔ اس وقت تو وہاں شام جوان ہوگی اور ہم یہاں بیٹھے مٹی کے تیل کی کالک سے اپنی آنتیں بھی کالی کر رہے ہیں۔ شارق نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تو برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ ویسے کیا تمہارا نظریہ بدل گیا ہے؟ نولکھے نے اسے گھورا، بولا، کیسا نظریہ؟ شارق بولا، 2-3 دن پہلے تم سمینہ سے کہہ رہے تھے کہ یہاں ہر طرف قدرت کا حسن بکھرا ہوا ہے اور دل چاہتا ہے کہ ساری زندگی یہیں رہ کر گزار دی جائے۔ نولکھا بولا، وہ نظریہ تو اپنی جگہ پر ہے شارق باؤ، مگر یہاں کچھ کرنے کو تو ہو۔ دن کے وقت تو سب کچھ بہت اچھا لگتا ہے، لیکن شام کا اندھیرا پھیلتے ہی وحشت ہونے لگتی ہے۔ اب دیکھو نا یہ کالا دھواں۔ وہ اپنی بات پوری نہ کر سکا تھا۔ اس کالے دھوئیں کی وجہ سے اسے کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ اس نے کھانستے ہوئے بمشکل کہا، یہ باری کھول دے یار شارق بھاؤ، کمرے میں تازہ ہوا آئے اور یہ دھواں باہر نکلے۔ شارق نے اٹھ کر کھڑکی کھول دی۔ تازہ ہوا کا جھونکا اندر آیا اور کچھ دیر بعد کمرے کی فضا کسی حد تک صاف ہو گئی، مگر نولکھا وقفے سے کھانستا رہا۔ صبح ناشتے کے بعد شارق اور نولکھا ٹہلتے ہوئے بستی سے کچھ دور آ کر شہتوت کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد سمینہ بھی پہنچ گئی۔ اس وقت اس نے قبائلی لباس پہن رکھا تھا اور یہ لباس اسے زینب نے دیا تھا۔
समीना ने उनके सामने एक पत्थर पर बैठते हुए कहा, क्या प्रोग्राम है भाई, जिंदगी भर यहीं रहना पड़ेगा क्या? शारिक बोला, आज शाम को मैं गुल रहमान से बात करूंगा कि अगर हालात मुआफिक नहीं हैं तो ये मिशन मुलतवी कर दिया जाए और हमारी वापसी का बंदोबस्त कर दिया जाए। कुछ अरसे के बाद जब हालात मुआफिक होंगे तो इस मिशन पर अमल किया जाएगा। समीना बोली, हाँ ये बात करनी ही पड़ेगी, यहाँ बेकार बैठे बैठे तो अब उकताहट सी होने लगी है। नौलक्खे ने कहा, मैं तो जिंदगी से ही बेजार हो गया हूँ समीना बीबी। समीना बोली, और इस बस्ती के बारे में जानते हो, ये क्या है? शारिक बोला, एक छोटी सी बस्ती है और यहाँ क्या हो सकता है? समीना बोली, ये छोटी सी बस्ती दरअसल दोनों मुल्कों की सरहद पर मलिक फरीद की गैर कानूनी सरगर्मियों का बहुत बड़ा मरकज है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो फिर बोली, इस बस्ती के कच्चे मकानों के नीचे बहुत वसी और अरीज तहखाने हैं जहां अफगानिस्तान से आने वाला माल, हेरोइन और असलहा स्टोर किया जाता है और फिर यह माल थोड़ा थोड़ा करके आगे पहुंचा दिया जाता है। शारिक ने उसे घूरा, बोला, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? समीना चंद लम्हे को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, मेहराब खान की बेटी जैनब ने बताया था। मलिक फरीद खान सरहद के दोनों तरफ आबाद कबाइल का सरदार है। वो इन इलाकों का बेताज बादशाह है। रूसियों के खिलाफ जंग में उसने अफगान मुजाहिदीन की मदद की थी और अब इसका मुआवजा वसूल कर रहा है। वो एक बार फिर खामोश हो गई और चंद लम्हों के बाद उसे मलिक फरीद खान के बारे में बताने लगी। नौलक्खा बोला, समीना बीबी, बात यह है कि जब तक आदमी के ऊपर तक ताल्लुकात ना हो, इस किस्म के गैर कानूनी कामों में कामयाब नहीं हो सकता। यहाँ मलिक फरीद है तो लाहौर में हाजी अब्दुल्ला है। हाजी अब्दुल्ला को तो तुमने देख लिया है, दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उसके ताल्लुकात हैं। हम अपने आप को बड़ा फनकार समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम तो छोटी मछलियां हैं, बहुत ही छोटी। हम तो शतरंज के मोहरे हैं जो दूसरों के इशारों पर चलते हैं। अगर हम पुलिस के एक मामूली से इंस्पेक्टर को रिश्वत देकर अपने काबू में कर लेते हैं तो समझते हैं कि हमने बहुत तीर मारा है, लेकिन फिर भी यकीन से नहीं कह सकते कि वो पुलिस इंस्पेक्टर हमारे काबू में है। ऊपर से दबाव पड़ने पर वही पुलिस इंस्पेक्टर हमारे हाथों में हथकड़ियां डाल सकता है। हाजी अब्दुल्ला को देख लो और ये मलिक फरीद खान, जिसके बारे में नए नए इंकिशाफात हो रहे हैं। ये बज़ाहिर मनशियात के स्मगलर हैं, लेकिन अपने अंदर हुकूमत का तख्ता उलट देने की कुव्वत रखते हैं। इन लोगों के पास इतनी दौलत है कि अपनी हुकूमत का 10 साल तक का बजट चला सकते हैं। कोलंबिया वालों की बात तो तुमने अखबारों में पढ़ी होगी। वहां के मनशियात के स्मगलर तो अपने खिलाफ फैसला देने वाले जजों को भी अदालतों में गोली से उड़ा देते हैं। कोलंबिया की हुकूमत मकरूज है, उसका कारोबार भी कर्जों पर चल रहा है और एक तज्जिया यह है कि वो आइंदा 50 बरस तक भी कर्जे नहीं उतार सकते, बल्कि इन कर्जों में कई गुना इजाफा हो सकता है। इसके बरक्स उस मुल्क के मनशियात के स्मगलरों के पास बड़ी दौलत है। उन्होंने तो अपनी हुकूमत को ये भी पेशकश की है कि अगर वो उन्हें मनशियात का आज़ादाना कारोबार करने की इजाज़त दे दे तो वो न सिर्फ चंद रोज में हुकूमत के तमाम कर्जे चुका देंगे, बल्कि हुकूमत को आइंदा 10 साल के बजट की परेशानियों से भी निजात दिला देंगे। समीना ने उसे घूरा, बोली, नौलक्खा भाई, मेरा ख्याल है कि खुली फजा और ताज़ा हवा तुम्हारे लिए मुफीद साबित हो रही है। तुम्हारा दिमाग रोशन हो रहा है और तुम ऐसी बातें करने लगे हो जो आम आदमी नहीं कर सकता। नौलक्खे ने कहा, ये बातें आम आदमियों के करने की भी नहीं हैं समीना बीबी। नौलक्खा कुछ कहना चाहता था लेकिन बात करते करते रुक गया। उसकी नजरें उस पहाड़ी रास्ते पर मरकूज थीं जो खाना बदोशों की बस्तियों की तरफ से आता था। समीना और शारिक भी उस तरफ देखने लगे। वो 3 औरतें थीं जो एक घोड़े के साथ साथ पैदल आ रही थीं। घोड़े पर एक आदमी बैठा हुआ था लेकिन उसके हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे। एक औरत ने घोड़े की लगाम थाम रखी थी और 2 उसके साथ साथ चल रही थीं। शारिक वगैरह हैरत से उनकी तरफ देख रहे थे। जब वो कदरे करीब पहुंचे तो शारिक ने उस औरत को पहचान लिया जिसने घोड़े की लगाम थाम रखी थी। ये खाना बदोश कबीले की वही औरत थी जिसने कल कबीले की बस्ती के सामने गुल रहमान से बात की थी। घोड़े पर बैठे हुए आदमी ने अपना सर झुका रखा था, लेकिन जब वो मजीद करीब पहुंचे तो समीना एक झटके से उठकर खड़ी हो गई। उसके मुंह से बेख्तियार निकला, ये तो वही है। शारिक बोला, वही कौन? वो भी उठकर खड़ा हो गया। समीना बोली, बासिम गुल का साथी, जिसने कल मुझे और जैनब को अगवा करने की कोशिश की थी। इस दौरान बस्ती वालों को भी पता चल गया था। मेहराब खान और दूसरे लोग घरों से निकल आए। उनके पीछे गुल रहमान भी था। वो खाना बदोश औरतें उनके सामने पहुंच कर रुक गईं। शारिक वगैरह भी वहां आ गए थे। गुल रहमान दूसरे लोगों को इधर उधर हटाता हुआ आगे आ गया। खाना बदोश औरत ने घोड़े पर बैठे हुए शख्स को खींचकर घोड़े से गिरा दिया। उस शख्स के हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे। वो नीचे गिरते हुए अपना बचाव नहीं कर सका था। उसे गिरने से अच्छी खासी चोट लगी थी और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई थी। वही खाना बदोश औरत गुल रहमान के सामने आते हुए बोली, खान गुल रहमान, हम तुम्हारे मुजरिम को ले आए हैं। इसे हमने कबीले से खारिज कर दिया है। अब इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं रहा। इसने जो हरकत की थी इससे हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे।
इससे तुम जो भी सुलूक करोगे हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन खुदारा हमें इस इलाके से बेदखल मत करो। हम मलिक फरीद खान के वफादार हैं और तुम जानते हो कि हमने हमेशा उसके मफाद को पेश नज़र रखा है। गुल रहमान ने उस औरत के खामोश होने पर कहा, तुमने मेरी ज़बान बंद कर दी है ज़रमीना बीबी। मैं जानता हूं कि तुम लोग मलिक फरीद खान के वफादार हो और कभी उसके मफाद के खिलाफ काम नहीं किया। इसने एक बहुत बड़ा जुर्म किया था और उस जुर्म की सज़ा इसे ज़रूर मिलेगी। तुम लोग चूंकि बेकसूर हो और इसे मेरे सामने पेश करके तुम लोगों ने बड़े खान से अपनी वफादारी का सबूत दे दिया है, इसलिए मैं अपना कल वाला फैसला वापस लेता हूँ। उसने खामोश होकर 2 आदमियों को इशारा किया कि कैदी को वहां से ले जाएं। फिर मेहराब खान की तरफ देखते हुए बोला, मेहराब खान, मेहमानों को घर में ले जाओ और इनकी खातिर तवाज़ो का बंदोबस्त करो। मेहराब खान उन तीनों खानाबदोश औरतों को अपने घर ले गया। समीना भी उनके साथ थी। वो चूंकि कबायली लिबास पहने हुए थे, इसलिए ज़रमीना वगैरह उसे भी कबायली ही समझ रही थी। ज़रमीना ने ज़ैनब की माँ की तरफ देखते हुए कहा, वो लड़कियां कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। ज़ैनब की माँ ने समीना और ज़ैनब की तरफ इशारा कर दिया। ज़रमीना ने बारी बारी उन दोनों को गले लगाकर प्यार किया, फिर अपनी एक साथी से एक पोटली लेकर खोली। उसमें 2 खूबसूरत कढ़ाई वाली शॉलें थीं। एक शॉल उसने समीना के सर पर डाल दी और दूसरी ज़ैनब के सर पर, और उन दोनों को एक बार फिर गले से लगाकर प्यार किया। दूसरी दोनों औरतों ने भी समीना और ज़ैनब को गले लगाकर प्यार किया। वो खानाबदोश औरतें तकरीबन 2 घंटे वहीं रहीं, और जब वो वापस जाने लगीं तो गुल रहमान ने उनके घोड़े पर आटे की 3 बोरियां लदवा दीं। आटे के अलावा उन्हें और भी कुछ चीजें दी गई थीं। खानाबदोशों के लिए आटा ही सबसे बड़ी नेमत थी। और फिर उस रात खाने के थोड़ी देर बाद शारिक और नौलखा गुल रहमान के पास आकर बैठ गए। मलिक फरीद खान की तरफ से अभी तक कोई पैगाम नहीं मिला था, इसलिए शारिक ने गुल रहमान से वापसी के लिए बात करने का फैसला कर लिया। गुल रहमान ने बड़े सुकून से उनकी बात सुनी, फिर बोला, मैं तुम्हारी बातों से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन सरहद पार की सूरत हाल हमारी नजरों में नहीं है। हमें कम से कम आज रात इंतजार कर लेना चाहिए। अगर मलिक फरीद खान की तरफ से कोई पैगाम न मिला तो कल सुबह मैं खुद ट्रांसमीटर पर उससे बात करूंगा और मिशन को मुलतवी कर देने वाली तुम्हारी तजवीज उसके सामने पेश कर दूंगा। शारिक ने उसके खामोश होने पर कहा, अगर सूरत हाल मुआफिक न हो तो कोई बड़ा खतरा मोल लेने की बजाय मिशन मुलतवी कर देना ही मुनासिब होगा। गुल रहमान ने कहा, सरहद पार की सियासी सूरत हाल खासी दिगरगू है और तुम नहीं जानते हमारा ये कारोबार वहाँ की सियासी सूरत हाल से मशरूत है। वहाँ कई सियासी पार्टियां हैं जो बरसरे इख्तिदार आने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम इन बातों को नहीं समझ सकोगे। बहरहाल हमें आज की रात इंतजार कर लेना चाहिए। शारिक ने कहा, ठीक है, हम आज की रात इंतजार कर लेते हैं। अगर कोई बात बनती हुई नजर न आए तो हमारी वापसी का बंदोबस्त कर देना। उसके साथ ही उनकी ये महफिल बर्खास्त हो गई। उस वक्त रात के तकरीबन 10 बजे थे। नौलखा कमरे में अपने बिस्तर पर बैठा खांस रहा था कि आंगन में कदमों की आवाज सुनाई दी। उसके 2 सेकंड के बाद ही मेहराब खान अंदर दाखिल हुआ। उसने शारिक की तरफ देखते हुए कहा, तुमको खान बुलाता है। शारिक कमरे से निकलकर मेहराब खान के साथ उस कमरे में आ गया जहां गुल रहमान बैठा हुआ था। 2 आदमी और भी थे। गुल रहमान के सामने ट्रांसमीटर रखा हुआ था। शारिक जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, गुल रहमान उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। गुल रहमान बोला, बेकारी खत्म हो गई, अब एक्शन का वक्त आ गया है शारिक भाई। शारिक भी मुस्कुरा दिया, बोला, गुड, हमें किस वक्त रवाना होना है? गुल रहमान बोला, 1 घंटे बाद ठीक 11 बजे हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तुम लोग अपनी तैयारी कर लो। शारिक बोला, हम तो तैयार ही बैठे हैं। कपड़े जो बिखरे हुए हैं उन्हें बैग्स में समेटना है और चल पड़ना है। गुल रहमान ने कहा, ठीक है, तुम लोग तैयारी करो, इस दौरान मेरे आदमी भी तैयार हो जाएंगे। शारिक अपने कमरे में आ गया। उसने नौलखे को बताया तो वो भी एक झटके से उठ कर खड़ा हो गया। समीना को भी इत्तला भिजवा दी गई और फिर ठीक 11 बजे वो लोग बस्ती से रुखसत हो रहे थे। उनकी तादाद 6 थी। 3 तो शारिक वगैरह थे और गुल रहमान के साथ 2 आदमी थे, बाजिद खान और नजीबुल्ला। शारिक, समीना और नौलखा खच्चरों पर सवार थे, जबकि गुल रहमान और उसके साथियों के पास घोड़े थे। गुल रहमान ने शारिक को बताया था कि सरहद पार करने से पहले उन्हें भी घोड़े मिल जाएंगे। ये काफिला बस्ती से निकलकर बुलंद पहाड़ों की तरफ चलता रहा। उनके बाईं तरफ तकरीबन 6 मील के फासले पर अली मेंगल कस्बा था और सरहद वहां से चंद मील आगे थी। 6-7 मील का फासला तय करने के बाद वो दरख्तों के एक झुंड के करीब रुक गए। दरख्तों के उस झुंड के दूसरी तरफ शायद कोई मकान था जहां से मध्यम सी रोशनी नजर आ रही थी। गुल रहमान ने पश्तो जबान में बाजिद खान से कुछ कहा और बाजिद खान घोड़े से उतरकर पैदल ही दरख्तों के झुंड में से होता हुआ मकान की तरफ चलने लगा। बाजिद खान की वापसी तकरीबन 10 मिनट के बाद हुई थी। उसके साथ 2 आदमी और थे जिन्होंने 3 घोड़ों की लगामें थाम रखी थी। उन्होंने करीब पहुंचकर गुल रहमान को सलाम किया। गुल रहमान ने पूछा, अब तक की क्या रिपोर्ट है जैगम? उस शख्स ने जवाब दिया, सब ठीक है खान,
समंदर खान पॉइंट पर मौजूद है, ताज़ा तरीन सूरत हाल वही बता सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप लोग ज्यादा देर न करें। गुल रहमान ने कहा, ठीक है, हम लोग रवाना हो रहे हैं। वो तीनों घोड़े शारिक, समीना और नौलखे को दे दिए गए और उसके तकरीबन 10 मिनट के बाद वो लोग वहां से रवाना हो गए। तकरीबन 2 मील का फासला तय करने के बाद वो एक तंग सी दराड़ में दाखिल हो गए। ये दराड़ आगे जाकर एक सुरंग में बदल गई थी। गुल रहमान सबसे आगे था और उसके पीछे शारिक। गुल रहमान ने टॉर्च रोशन कर ली थी। टॉर्चें हालांकि दूसरों के पास भी थी, मगर किसी और ने टॉर्च नहीं जलाई थी। सुरंग में एक टॉर्च की रोशनी उन सबको रास्ता दिखाने के लिए काफी थी, और यूं भी शायद घोड़े उस रास्ते से अच्छी तरह वाकिफ थे। गुल रहमान ने पीछे गर्दन घुमाकर शारिक की तरफ देखते हुए कहा, तोरखान के बारे में मुझे भी शुबा था कि वो कोई गड़बड़ करने की कोशिश करेगा, इसलिए मैंने ये रास्ता इख्तियार किया है। इस रास्ते के बारे में तोरखान के फरिश्तों को भी कुछ मालूम नहीं है। शारिक ने कोई जवाब न दिया। वो खामोशी से तारीक सुरंग में चलते रहे। उस सुरंग में 2-3 मोड़ आए थे और बिलाखिर तकरीबन निस्फ मील का फासला तय करने के बाद वो सुरंग से निकलकर खुली फजा में आ गए। सुरंग से बाहर आते ही समीना को यूं महसूस हुआ जैसे उसकी सांस रुक जाएगी। सुरंग का दहाना तकरीबन 2000 फुट की बुलंदी पर था। उसके सामने तकरीबन 15 फुट चौड़ी पट्टी थी जो चट्टान के साथ साथ चली गई थी। आगे गहरा खड्ड था। अगर घोड़ा बिदक कर उस खड्ड में जा गिरे तो घोड़े और उसके इतने टुकड़े हो जाएंगे कि उन्हें समेटना भी मुमकिन नहीं होगा। समीना ने अपना घोड़ा चट्टान की तरफ कर लिया। इस मर्तबा बाजिद का घोड़ा सबसे आगे था। कुछ दूर तक तो रास्ता चट्टान के गिर्द घूमता रहा, फिर वो एक कुशादा जगह पर पहुंचकर रुक गए। थोड़ी ही देर के बाद एक आदमी किसी चट्टान की आड़ से निकलकर सामने आ गया। वो समंदर खान था। गुल रहमान ने पूछा, समंदर खान, क्या सूरत हाल है? समंदर खान ने कहा, सब ठीक है खान, तुम लोग निकल जाओ। उसी वक्त चांद निकल आया और फजा में फीकी सी चांदनी फैल गई। समंदर खान वापस चला गया। गुल रहमान कुछ देर तक इधर उधर देखता रहा और फिर उसने घोड़ा आगे बढ़ा दिया। वो मुसलसल ढलान से उतर रहे थे और बिलाखिर एक जगह रुक गए। वो पहाड़ के दामन में पहुंच गए थे। उनके सामने वसी और अरीज वादी फैली हुई थी। गुल रहमान ने शारिक को मुखातिब करते हुए कहा, तकरीबन 100 गज आगे वो छोटी सी चट्टान दिख रहे हो, वो सरहद है। उस चट्टान के दूसरी तरफ अफगान इलाका शुरू हो जाता है। उस चट्टान से दूसरी तरफ हमें बड़ी तेजी से घोड़े दौड़ाने होंगे ताकि हम कम से कम वक्त में सरहद से ज्यादा दूर निकल जाएं। वो लोग चंद मिनट वहां खड़े रहे, फिर गुल रहमान ने इशारा किया और उन सब लोगों ने घोड़ों को एड़ लगा दी। घोड़े तेजी से दौड़ते हुए सरहदी चट्टान से आगे निकल गए। टापों की आवाज से फजा गूंजने लगी थी। समीना का घोड़ा बाजिद खान के घोड़े के साथ दौड़ रहा था। अब तक उस घोड़े पर सवारी करते हुए उसे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी, लेकिन फिर अचानक ही घोड़ा बिदक गया। घोड़े के बिदकने की वजह भी उसकी समझ में आ गई थी। भेड़ियों के एक गोल ने अचानक ही उन पर हमला कर दिया था। गुल रहमान ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि इस इलाके में खूंखार भेड़ियों के गोल फिरते रहते हैं, जो अगर ताकुब में लग जाएं तो दूर तक पीछा नहीं छोड़ते। और वही हुआ था जिसका अंदेशा था। भेड़ियों के इस अचानक हमले से सभी घोड़े बिदक गए थे। समीना का घोड़ा तो बिदक कर रास्ते से भी हट गया था। 5-6 भेड़िए गुर्राते हुए उसके पीछे दौड़ रहे थे। समीना बुरी तरह बदहवास हो गई थी। वो घोड़े पर तकरीबन लेट गई थी। खौफजदा घोड़ा तूफानी रफ्तार से दौड़ रहा था और समीना सोच रही थी कि अगर वो गिर गई तो घोड़े के पैरों तले कुचली जाएगी, और अगर कुचली जाने से बच गई तो खूंखार भेड़िए उसका तिया पांचा कर डालेंगे। भेड़ियों की गुर्राहट उसकी समात से टकरा रही थी। उसने एक मर्तबा गर्दन घुमाकर देखा और उसके साथ ही उसे सीने में अपना सांस रुकता सा महसूस हुआ। एक भेड़िया बहुत करीब था और वो बार बार घोड़े की टांग पर दांत गाड़ने की कोशिश कर रहा था। समीना बार बार अपने पैर घोड़े के पेट पर मारने लगी। घोड़ा खुद भी खौफजदा था। उसे अपनी जान बचाने की फिक्र थी। वो जान तोड़ कर दौड़ रहा था। तकरीबन आधे घंटे बाद भेड़ियों ने पीछा छोड़ दिया। उसके बाद कई मिनट तक समीना घोड़े को दौड़ाती रही और बिलाखिर उसने घोड़ा रोक लिया और सीधी होकर इधर उधर देखने लगी। उसके चारों तरफ सन्नाटा और वीराना था। उसे अंदाजा नहीं था कि वो अपने साथियों से बिछड़कर किस तरफ और कितनी दूर निकल आई थी। उसका दिल कांप रहा था। उस वीराने में खूंखार भेड़िए दोबारा भी उस पर हमला कर सकते थे। उसने घोड़े का रुख दाईं तरफ कर दिया और ये उसकी खुशकिस्मती थी कि तकरीबन आधे घंटे बाद वो अपने साथियों को तलाश करने में कामयाब हो गई थी। नौलखे की तो बहुत बुरी हालत थी। वो चीख चीख कर उस वक्त को गालियां बक रहा था जब उसने इस मिशन पर आने का फैसला किया था। वो तकरीबन 1 घंटे तक चलते रहे। पहाड़ी सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया था। गुल रहमान एक जगह रुक कर इधर उधर देखने लगा और फिर एक तरफ रुख करके किसी का नाम लेकर पुकारने लगा। थोड़ी देर बाद 2 घुड़सवार एक चट्टान की आड़ से निकलकर सामने आ गए। उन दोनों के चेहरों पर ढाटे बंधे हुए थे। उनमें से एक ने बुलंद आवाज में कहा, खुशामदीद गुल रहमान, तुम सब लोग हमारे पीछे आ जाओ। वो पहाड़ों में दाखिल हो गए।
उन पहाड़ों में उन्हें एक मुख्तसर चौड़ाई वाला दरिया भी पार करना पड़ा। दरिया के दूसरी तरफ एक चट्टान पर कलानुमा मकान बना हुआ था। उसके चारों तरफ दरख्त थे। उस वक्त दिन का बहुत हल्का सा उजाला फैलने लगा था। वो लोग उस कलानुमा मकान में दाखिल हो गए, लेकिन वो अभी घोड़ों पर सवार ही थे कि एक आदमी किसी तरफ से निकलकर सामने आ गया। उसे देखकर सभी चौंक गए। वो तुरखान था। गुल रहमान का हाथ अपनी राइफल पर पहुंच गया, लेकिन उसने राइफल अभी कंधे से भी नहीं उतारी थी कि तुरखान की आवाज सुनाई दी। खान, गुल रहमान, राइफल कंधे से उतारने से पहले अपने चारों तरफ देख लो। गुल रहमान ने तो शायद बाद में देखा होगा, लेकिन समीना की गर्दन फौरन ही घूम गई थी। उसके साथ ही उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। उनके चारों तरफ 10-12 आदमी राइफलें ताने खड़े थे। वो लोग चूहे दान में फंस गए थे और चारों तरफ से राइफलों की जद में थे।